properties of alcohol. और उसमें हम पहुंच चुके थे फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, दैट इज ऑक्सीडेशन. Oxidation of alcohol. This is very important property. We need oxidizing agent like acidified its color change is purple to colorless. Similarly, acidified dichromate, potassium dichromate, its color change is हमारे पास एक एलिमेंट है यूरेनियम, इसमें प्रोटॉन होते हैं orange to green. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिला के 236 होते हैं. So these two oxidizing agents are enough. कुछ यूरेनियम के जो न्यूक्लियाई So if our alcohol is primary alcohol, तो इन दोनों को हम कह देंगे on oxidation तो न्यूक्लियस under same heat number of protons and distill. लेकिन different number of न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए आइसोटोप कहलाता है. Heat and distill condition, it will be converted into aldehyde. For example, element this is primary alcohol, ethanol. In this condition, it will be converted into aldehyde. Will be converted into aldehyde. nuclei of the same element having And if same primary alcohol same is oxidized under the heat number of protons, reflux, then we will get carboxylic acid. different number of So if same ethanol is oxidized on heat reflux chemistry के अंदर आप प्रेशर यहाँ पे atom condition, देगा, लेकिन physics के अंदर आपने nuclei Then लिखा है. So nuclei it will be converted into ethanoic acid. same number of protons, but different number of neutrons are called Ethanoic acid. uranium के दो isotopes लिखे हैं. और भी elements के हो सकते So हैं. with primary alcohol, के अंदर proton we will get two types of products, depends on the condition provided. लेकिन अगर आप न्यूट्रॉन्स लेना चाहें तो 236 minus Now, if we have secondary alcohol, approximately 144 और ये 238 secondary alcohol on oxidation ये हो जाएगा 146 under तो न्यूट्रॉन heat डिफरेंट हैं reflux, सेम, इसलिए ये दोनों आइसोटोप we will get ketone. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर For example, प्रोटॉन we have 2 propanol, greater than 83 हो जाए which is secondary alcohol. We will get propanol. Propanol. natural And if it is cyclic alcohol, for example, this is also secondary alcohol, we will get ketone, cyclic ketone. Neutron plus proton will So, this is the behavior of secondary alcohol on oxidation. जो भी radioactive nucleus होता है वो unstable If it is tertiary alcohol,
तो ज़्यादा देर and if you want to oxidize it इसलिए ये अपने अंदर under से heat reflex या जो मर्जी condition रखें, no reaction. बीटा gamma. So from this reaction we also differentiate the three types of alcohol from the products. So this is its importance. We can therefore differentiate and identify these alcohols from this reaction, because it is, if primary alcohol, then it will produce either aldehyde or carboxylic acid, and if it is secondary, it will produce only ketone, and if it is tertiary, then there is no reaction. So this is the behavior with the behavior of alcohol on oxidation. Next. मतलब आगे जब आप इसकी इंडस्ट्री वाली रेडिएशन एमिट कर रहे हैं एक भी एक में एमिट किया आपके पास कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा. Next chemical property number 6. How many radiation? Dehydration or elimination How many reactions or even decomposition reaction will be emitted? ये भी कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि कौन सा न्यूक्लियस एमिट करेगा, कितनी रेडिएशंस करेगा, and number 3 इसके लिए ये जो behavior है, this behavior is alcohol random behavior. मतलब कोई बंदा नहीं predict should contain रेडिएशन एमिट करेगा, beta hydrogen. कितनी रेडिएशंस करेगा, कब करेगा, तो इस Alcohol should contain beta random hydrogen. अब ये जो आपके पास What is beta hydrogen? ये देखें, this is alpha carbon atom जिसके साथ functional group होता है. Next carbon is beta और इसके साथ कोई हाइड्रोजन होना चाहिए. So this is beta hydrogen. यूरेनियम से अल्फा निकले तो यूरेनियम खत्म होके थोरियम Beta hydrogen should be present in alcohol. तो ये डिक्रीज. So its equation is, जी for example, we have ethanol. थोरियम बनेगा ये अल्फा है और साथ रखिए. इसी तरह अगर यूरेनियम में से Heating, बीटा निकले catalytic dehydration इसको कहते हैं. हैं. Aluminium oxide is a catalyst. इसका मतलब है यूरेनियम और silica चाहे अल्फा निकले चाहे catalyst. This is a kind of cracking. डिक्रीज. This is a kind of cracking. So it will decompose into alkene, ethene रेडियो plus H2O. Ethene plus H2O. न्यूक्लियस है. Mechanism, mechanism wise, ये जो beta hydrogen है, ये बॉन्ड इधर आएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा. तो देखो ethene बनी. So this can be decomposed by the presence of catalyst. So this is catalytic dehydration. और फिर इनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं एसिड catalyzed इसलिए नॉन लीनियर प्रोसेस है.
acid catalyzed dehydration. non-linear process. So alcohol Means numbering format containing beta hydrogen, जितने time if we use आधे nucleus concentrated के लिए H2SO4 catalyst उस time and heat it, temperature range even up लिखना है तो 200 तक लिख सकते हैं. हम ये कह सकते हैं कि half life होती है We will get alkene. जो half life होती है वो actually time Plus water. taken by any Similarly, radioactive if an alcohol sample containing more than one beta hydrogen, it's hot. for example, this तो 2 अगर butanol, हमारे पास sample decay करने में खत्म होने we will get 2 types of alkene. एक half life के बाद If this hydrogen leaves, then OH will be leave, so we will get 2. second half life के बाद और आगे जाएगा And if this hydrogen leaves, then we will get 1 butene. third half life के बाद इसका भी आधा हो जाएगा के बाद इसका भी आधा हो जाएगा and so on. तो ये हो जाएगा 1/2 If more than one beta hydrogen atoms are present, half lives एक half life के बाद 1/2 दो half life के बाद and 2 put करेंगे 1/2 then we will get 2 types of alkene, इधर and put करने as we have seen in 2-butanol. number 4 put कर देंगे 4 half life के 1/16 तो ये जो decrease in the number of the radioactive nuclei आता है This is 2-butanol. होता है और जितने टाइम में आधा डिले कर जाता है आधा खत्म हो जाता है But if it is 1-butanol, तो फिर हमें और हर हाफ लाइफ के बाद एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. उसके बाद फिर और So this is elimination reaction as well as dehydration, because water is lost in this reaction from alcohol. जी इसको आप देख लें So this is another property, and these are the all chemical properties of alcohol. So we okay discussed its combustion, next ये process में decay वाला then लेकिन ये spontaneously होगा reaction with reactive metal like sodium. Then we discussed its esterification, हमारे कुछ करने से इसको चेंज नहीं होगा मतलब हम कह सकते हैं and then from alcohol halo alkanes radiation are produced from alcohol, from the nucleus and then is not its oxidation is just discussed, affected and then elimination reaction. by So there are surrounding 1, 2, 3, 4, 5 or around 6 chemical properties of alcohols are discussed. surrounding physical conditions क्या हैं इसका हम लास्ट जो पढ़ेंगे वो है आपने जनाब आयोडोफॉर्म टेस्ट. चेंज कर लिया आयोडोफॉर्म इसके इमिशन भी हुई अगर 1 सेकंड में 10 डिग्री की गर्म हो गया ठंडा हो टेस्ट, और ये A2 से शिफ्टेड है, उस सराउंडिंग और ये होगा अल्कोहल गर्म करने से ज्यादा नहीं containing से कम नहीं होगी आप इसको जनाब मुंह मारेंगे एयर प्रेशर CH3 तो इससे कोई नहीं CHOH group. This group should be present in alcohol. इसको कहते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप.
और इसको C से presence of represent करते हैं। alpha methyl group in और alcohols. segments होते हैं per minute. How many तो reactions अगर ये ग्रुप मौजूद होगा किसी भी अल्कोहल में तो आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। आपके पास इसके जो रिएजेंट है मास ज्यादा था वो है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आयोडीन NaOH, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं जो काउंट रेट है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और इसके जो कंडीशन है मास ज्यादा होगा इसमें थोड़ी सी हीटिंग चाहिए हमें, लेस ज्यादा होंगे तो काउंट रेट ज्यादा होगा। इसलिए लिटिल हीटिंग, इसे सिंपली हीटिंग लिखा जाएगा। और इसकी जो इक्वेशन है any alcohol, for example this one, नंबर जीरो नहीं हो सकता जो बताया था, लेकिन ये अगर नंबर कांस्टेंट नहीं हो सकता, ग्रेजुअली कम होता जाएगा। ये है काउंट रेट कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हो जाता है? अगर हमारा 2-butanol है कम भी हो जाए और हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं अब अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन के साथ लिटिल हीटिंग, विजिबल सोर्स क्या है? तो ये जो CH3 है इट इज कन्वर्टेड इनटू CHI3 और ये ऑब्जर्वेशन होगी येलो PPT, और अगर आप गूगल करेंगे तो लिखा होगा येलो PPT। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसमें C2H5 से हम लिखेंगे और जो OH वाला कार्बन है इट इज जो OH वाला कार्बन है इट इज ऑक्सीडाइज टू COONA सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमेशा इसके ये इस तरह के दो प्रोडक्ट्स आपको आने चाहिए, एक आयोडोफॉर्म और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अगर इवन एथेनॉल हो, एथेनॉल इज आल्सो containing alpha methyl group, तो we will get, इससे हमें मिलेगा आयोडोफॉर्म सबसे ज्यादा और अब रह गया एक कार्बन, तो ये होगा HCONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बनेगा। तो एनी अल्कोहल, इसका मतलब अगर इस तरह का अल्कोहल हो मार्बल लगाते हैं तो जो ग्रेनाइट होता है उसमें रेडॉन के पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्रेनाइट के तो अंदर से भी रेडिएशन निकलती है। इसको अगर आप रेट करेंगे 1 प्रोपेनॉल नो येलो PPT, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन अल्फा मिथाइल ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। C जिसके साथ OH है उसके साथ आगे CH3 बॉन्डेड नहीं है, तो इसके साथ है, इसके साथ भी है अल्फा मिथाइल ग्रुप, ये मौजूद है इस अल्फा कार्बन के साथ, जिस तरह ये अल्फा कार्बन है। लेकिन हियर ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ CH2 और CH3 अटैच है, CH3 अटैच नहीं है, तो लिहाजा इसका नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल चैप्टर। तो अल्कोहल इज फिनिश्ड और अब हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर शुरू है, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड और सबसे बड़ा डेंजर सोर्स जो है ये जो आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स।
आपके पास फूड आइटम्स होते हैं One is aldehyde, और सबसे गंदी चीज the other one is आइसक्रीम। ketone. अब आइसक्रीम वाले क्या करते हैं जनाब, आइसक्रीम का ये रैपर है, इसके ऊपर एक्सपायरी उन्होंने जनाब लिख दी, इसको उसने आज जनाब आज की एक्सपायरी 21/3/2020। तो एक हफ्ता पहले Aldehyde is represented as C double bond जो O के साथ एक तरफ R और एक तरफ H. कौन करेगा? अभी कंपनी वाले को भाई आपका सामान कीटोन की जो रिप्रेजेंटेशन है C डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स होने चाहिए। और इन दोनों का जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम है, CnH2n4 इसको उतारते हैं CnH2n O। खूबसूरत नई एक्सपायरी लगा देंगे, कब की जनाब हो सकता है वो लगाने में इधर एक कार्बन भी हो सकता है एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन में मिनिमम 3 कार्बन एटम होने चाहिए। तो इनकी जो नेमिंग है जिससे तुम फेमिलियर हो, एल्डिहाइड को हम कहते हैं अल्केनॉल। ये देखें, ये सबसे अच्छा, ये 2 कार्बन एटम एल्डिहाइड मैंने ड्रॉ किया, दैट इज एथेनॉल। ये एक कार्बन वाला भी हो सकता है अगर दोनों तरफ H हो, मेथनॉल। और इसी तरह ये अगर है तो 1 2 3 ये होगा प्रोपेनॉल। और जो कीटोन है नेम्ड एज अल्कानोन। अल्कानोन सबसे पहले डोजी मीटर से उसके डिफरेंट कलर्स बैकग्राउंड The smallest ketone is 3 carbon atom. 1 2 3 प्रोपेनॉन। और इसमें हमें मेंशन करना पड़ेगा कीटोन की पोजीशन 2 प्रोपेनॉन। तो देखें, अगर ये हो 1 2 3 4 5, ये 2 पेंटेनॉन। नंबरिंग वहां से होगी जहां से ये करीब हो कार्बोनाइल कंपाउंड। 2 पेंटेनॉन अल्कानॉन। तो इसी तरह ये जो है ये 2 ब्यूटानॉन है। 1 2 3 4। दिस इज देयर। इस ट्यूब के अंदर नेमिंग और और गैस होती है। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आओ। पार्टिकल एंटर होते हैं तो आयंस बनते हैं। फिजिकल और प्रॉपर्टी अल्फा बीटा आयंस बनाते हैं और वो आयंस कार्बोनाइल चार्ज होते हैं। कंपाउंड। स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उन स्पार्क को काउंट कर सकते हैं। Number 1 करंट को is इसलिए there कहते हैं कि GMU melting and boiling points. Their melting, ये आप लिखेंगे, their melting and boiling points are higher than hydrocarbons अब इधर देखें इसको, of comparable masses मैं शुरू से फिर because they are polar molecule and there are strong dipole dash dipole forces. Polar molecule and there are strong dipole dash dipole forces among the molecules, while hydrocarbons are non-polar and there are only weak van der Waals forces. So coming to their another physical property, that is their volatility. So they are less volatile than hydrocarbon. Again, because they are polar molecule and there are strong
dipole dash dipole forces. आईफोन वाला Similarly, जी इनकी solubility, तो smaller तो carbonyl compound देना dissolves in water जी जी because they can form H bonding with water. Can form H bonding with water. But as the size of alkyl group increases, then their solubility decreases because of hydrophobic nature of alkyl group. So smaller carbonyl compound dissolves in water by H bonding. लेकिन जैसे जैसे ये अल्काइल पार्ट बढ़ेगा, इनकी solubility will decrease because of the hydrophobic nature of alkyl group. So this is their physical properties. And next इसमें हमने पढ़ना है कार्बोनाइल कंपाउंड में आइसोमेरिज्म. Isomerism. They show both structural and stereo. अब ऐसा है कि ये डायगर जो ये अल्फा पार्टिकल Stereo isomerism. उससे पता चलता है कि कितनी For example, अब आते हैं कि अल्फा बीटा गामा for example, होते क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है. तो नंबर वन हम स्टार्ट करते हैं अल्फा से. अगर पहली बात याद रखें कि अल्फा जो होता है ये रेडिएशन है, लेकिन ये पार्टिकल की फॉर्म C4H9O. बिल्कुल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, एटम ही एटम, हीलियम का न्यूक्लियस का, जिसके अंदर दो प्रोटॉन. ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो इसके हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेट से मैं एल्डिहाइड बनाऊंगा, और दो न्यूट्रॉन्स इकट्ठे फिर रहे हैं. ये इसका ब्यूटानॉल है. अब इसका दूसरा हो जाएगा ये तो अल्फा पार्टिकल जब भी निकलता 2-methyl propanol, another aldehyde. दो न्यूट्रॉन का होता है. अब इसका दूसरा नहीं हो सकता, तो कीटोन तो अगर मैंने सोचा इसका सिर्फ ये हो सकता है, इसके प्रोटॉन नंबर 3, इसका 2-butanol. आपको याद होगा ये लेकिन अगर हम इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, ये बिल्कुल नया कोई एलिमेंट बन जाएगा, C5H10O. तो प्रोटॉन कितने कम हो जाते हैं? ये इसके मैं एल्डिहाइड ड्रॉ कर रहा हूँ पहले. टोटल मिला के कितने पार्टिकल कम हो जाते हैं? 4. या मैं याद रखूं. अब इसके साथ अल्फा निकलेगा, जिसके पास दो प्रोटॉन हैं और दो पार्टिकल हैं, साथ निकलेगी एनर्जी. अब इसको ये इसके सारे एल्डिहाइड्स हैं, Ca आइसोमर्स. अब अगर मैं इसके कीटोन ड्रॉ करूंगा A-4 और अल्फा की तो जगह 2-pentanol, इंग्लिश में लिख देंगे तो सन 3-pentanol भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है. तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस
by 2. ब्रांच कीटोन। Neutron number decreases by 2. अब अगर हम इसमें ढूंढें और total chiral mass कार्बन, number तो decreases by फिर 1. ये जो है दिस वन, ये H है, ये chiral कार्बन है। न्यूक्लियस में से इसकी तो स्पीड होती है इसी की, इसका मतलब है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ हम कर सकते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी तो होती है? वो हमें पता है कि 3D में ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन वेज शेप। अब इसमें जो मर्जी ग्रुप, मैं एल्डिहाइड का ग्रुप लेट से ऊपर लगा रहा हूँ, तो इसके साथ एक H है, एक CH3 है और एक C2H5 है। इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। से बाहर निकलेगा तो मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर तक जा सकता है। सेंटीमीटर के बाद क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म होगी क्या हो जाएगा? इसको छोड़ दें। these are the optical isomers of this compound. उसके बाद ऑप्टिकल के लिए देयर शुड बी chiral कार्बन, जबकि इनमें बाकी किसी में भी chiral कार्बन नहीं है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड और इसकी आयनाइजेशन और जो नेक्स्ट है, दैट इज देयर 10 पावर 5 प्रिपरेशन। आयन स्फीयर बनाता है पर मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर एयर के अंदर 10 पावर 5 आयन स्फीयर बनाता है। Preparation of लेकिन पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है। कार्बोनाइल कंपाउंड मीन एल्डिहाइड अगर एंड न्यूक्लियस को कीटोन। हम रैप कर दें पेपर से, तो ये आप इससे फेमिलियर हैं। अल्फा पार्टिकल लॉक हो अगर हम एल्डिहाइड बनाना चाहें अल्फा पार्टिकल पेपर से लॉक हो तो सकता है। हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे हीट एंड डिस्टिल कंडीशन। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना है इसको, हीट एंड डिस्टिल, ये दो मेटल प्लेट्स हैं, तो वी विल गेट एल्डिहाइड। अभी अभी हमने किया है इसको अल्कोहल में। तो लेट्स से अल्फा पार्टिकल आएगा ये एथेनॉल है अल्फा के ऊपर पॉजिटिव विच इज प्राइमरी अल्कोहल। पॉजिटिव पॉजिटिव पर अटैक करेगा तो इससे हमें मिलेगा एथेनॉल। नेगेटिव प्लेट अगर ये लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, एथेनॉल भी हो वन, तो एनी वन अल्कनॉल जो है दैट इज प्राइमरी। तो हमें हीट एंड डिस्टिल पे इसमें से एल्डिहाइड मिलेगा। अच्छा, अब अगर हम कीटोन की प्रिपरेशन करना चाहें तो कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल हीट रिफ्लक्स कंडीशन, हीट रिफ्लक्स कंडीशन पे वी विल गेट कीटोन्स। तो लेट्स से ये 2-प्रोपेनॉल, we will get प्रोपेनॉन। पहली बात पढ़ी है कि पार्टिकल है, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो इससे निकलता है तो प्रोटॉन दो कम हो जाते हैं। अगर ये साइक्लिक कीटोन हो, उसके बाद इसकी स्पीड होती है 1 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट होती है। साइक्लिक अल्कोहल हो सेकेंडरी, तो हमें साइक्लिक कीटोन मिलेगा ऑन ऑक्सीडेशन। Its preparation. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में This is heat and distillation apparatus, and this is heat under reflux apparatus arrangement. तो हमें मिलेगा कि कीटोन एंड एल्डिहाइड। अब हम नेक्स्ट जाएंगे इनकी केमिकल बिहेवियर के बारे में। पहली बात ये है कि बीटा पार्टिकल केमिकल बिहेवियर, न्यूक्लियस से निकलता है
लेकिन ये of सिमिलर टू carbonyl carbonyl compound. तो केमिकल बिहेवियर जो है इतना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये प्रोटॉन बड़े दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. अगर अल्फा पार्टिकल नहीं निकल सकता इलेक्ट्रोफिलिक और दो स्टेयर सेंटर. वो आसानी से ना निकल सके तो फिर न्यूट्रॉन क्या करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से अलग हो जाता है ये जनाब न्यूट्रॉन अपने ग्रुप से अलग हो जाता है आवाज न्यूट्रॉन ठीक को चार्ज है, नहीं है आवाज. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं So, है न्यूट्रल है न्यूक्लियोफाइल तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में कैन अटैक. कि अगर हमारे पास Therefore, एक they show उसके सामने अगर हम पॉजिटिवली चार्ज nucleophilic ये साइड नेगेटिव बन जाएगी पॉजिटिव या न्यूट्रॉन के साथ ये होगा addition ये पॉजिटिव प्रोटॉन है तो ये type वाली of साइड बन जाएगी अब chemical नेगेटिव साइड प्रोटॉन अटैक reaction. पॉजिटिव वाली साइड न्यूट्रॉन अटैक करेगी therefore, न्यूट्रॉन की ब्रेक कार्बोनाइल कंपाउंड की जो मेन रिएक्शन है आधा आधा वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. इससे पहले तुमने ये वर्ड सुना था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. और ये जो नेगेटिव पोर्शन है ये बाहर निकल आएगा एज अ बीटा पार्टिकल तो असल में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. निकलता है तो एक न्यूट्रॉन टूट के जबकि यू आर फेमिलियर दैट जब भी न्यूट्रॉन टूटता है न्यूक्लियस के अंदर आधा हिस्सा उसका प्रोटॉन बन जाता है ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, निकल आता है it has no positive negative center, therefore they only show electrophilic addition reaction. As we already know that alkene shows electrophilic addition type of chemical reaction. जबकि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है अब एक नया नाम आ गया दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन type of chemical reaction. Here it is not possible because with both carbon atom there is no positive negative. No positive and negative center in alkene. So that is why they show electrophilic addition. Carbonyl compound will show electrophilic reaction. तो अब हम इनकी अगर केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्रॉपर्टीज पढ़ सकेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर 1 इज रिडक्शन. रिडक्शन में ठीक है. अब उसके बाद नंबर 5 ये reducing agent like lithium aluminium tetrahydride dissolved in ether. और अगर आप अगर हम NaBH4 एक्वस यूज करेंगे तो इसके साथ हीट रिफ्लक्स ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. और अगर हम हाइड्रोजन यूज करें तो निकल कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी द कंडीशन.
So we can use these three types of वो इस पे reducing agent. पॉजिटिव की तरफ क्यों बीटा के ऊपर नेगेटिव 1 चार्ज होता है So if it is aldehyde नेगेटिव 1 चार्ज और लाइट वेट and if it is reduced, अगर इधर भी जाएगा तो नीचे बैठ जाएगा फिर लाइट वेट aldehyde से हमेशा आप प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कोई भी एलिमेंट है ये देखें, this is कोई नया एलिमेंट बन जाएगा उसका क्यों converted into ethanol, primary alcohol, ये से कैंसर whatever the primary alcohol. लेकिन अगर ये कीटोन हो, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोपेनॉन है और इसकी आपने रिडक्शन की, इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और वो अगर 2 प्रोपेनॉन और अगर ये साइक्लिक होगा, साइक्लिक अल्कोहल बनेगा और सेकेंडरी। So the first chemical property is their reduction, and that is by reducing agent. So this is first chemical property. अब गैमा पार्टिकल नहीं है एक प्रॉपर्टी हम इसकी लो बात करते मास हैं, that is नो चार्ज their nucleophilic addition reaction, mean reaction with nucleophilic अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक addition, से ये एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट HCN। काम ज्यादा नहीं स्पीड ऑफ लाइट इसके लिए जो हम reagent का KCN and और इसको अगर ब्लॉक करना हो dilute HCl plus little और इसकी आयनाइजेशन पावर NaOH होती है और आयनाइजेशन पावर और कितनी होती इसके है लिए और कोई कंडीशन नहीं, इसकी जो इक्वेशन है और अगर तो शुरू में दिस KCN with HCl will form HCN plus KCl और ये HCN बेस की मौजूदगी में ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल आगे, या अगर मैं लिखूं इसकी इक्वेशन दूसरी, तो अब एनी कार्बोनाइल कंपाउंड चाहे वो एल्डिहाइड हो तो HCN के साथ this is this compound is called nitrile because cyanidine जो है इसमें आ गया, तो इनको हम कॉमनली कॉल्ड cyanohydrine। यार श्योर ना करो, क्वेश्चन पूछो मुझसे। तो ये CN न्यूक्लियोफाइल बन के ऐड होगा। आप पूछिए जरा क्वेश्चन। इसका मैं मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। ये एक और मैकेनिज्म आ गया। शुरू में ये जो HCN है बेस इसमें से जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल
वहाँ आपने आप ज्वाइन किया तो मैंने पढ़ाया था अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मर्जी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, ये साइनाइड न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा। दिस इज पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये O नेगेटिव। अब अगले स्टेप में ये जो नेगेटिव आयन है इंटरमीडिएट, इस H आयन, ये चाहे HCN है और वाटर से भी हो सकता है, तो ये H आयन इसके साथ मिलके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। So we get this product, फिर इस पे effect of pH on the rate of reaction. So in alkaline medium, alkaline medium, देखो ये अल्कलाइन मीडियम में मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। जी बेटा if OH ion increases, then equilibrium will shift to right and free will be produced that is called readily available to attack, hence rate will increase. In alkaline medium इसका रेट फास्टर होगा क्योंकि ये फ्री साइनाइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है जो कि अवेलेबल होगा टू अटैक, अवेलेबल होगा टू अटैक तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इन अल्कलाइन मीडियम जो है वो फास्टर हो जाएगा। जी ये वीवो 1812 वाले तो एसिडिक मीडियम में अगर H आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट to the left and therefore the CN negative ion will decrease.
हाफ लाइफ कैलकुलेट करना, and hence स्टार फॉर्मेशन कराऊंगा, फिशन कराऊंगा, rate, फ्यूजन कराऊंगा। that is why in this reaction we are using acidic medium, basic medium, because in alkaline medium its rate is faster. तो यहाँ तक आज आप रखेंगे और हमने इसकी दो केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की है और इसकी इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज है, बाकी इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। और कोई पूछना चाहते हो, कोई बात शेयर करना चाहते हो?